रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के दौरे के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। हरीश राव ने वजीर दाखिला के हमरा मुलुगु मंडल सेंटर और वरगल मंडल गोराराम में सर्कल पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। बाद वहाँ गजवेल मंडल के श्रीगिरीपल्ली में ग्राम पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीजेपी ने किसान मुखालिफ क़वानीन मंजूर किए थे, वो हजारों किसानों की मौत की जिम्मेदार है, जबकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में किसानों के लिए 3 घंटे भर की सरबराही को काफी बता रही है और उसे अवाम के गुस्से का सामना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग वजीर आला केसीआर से खुश है, वो उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं क्योंकि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। रियासती वजीर ने तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी को भी हरीश राव ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలు తెలంగాణ ద్రోహులు, తెలంగాణ రాకుండా అడ్డం పడ్డటువంటి నీచులు, వాళ్ళు మా గురువులని వాళ్ళని వెంట పెట్టుకొని తిరిగితే సంకల పిల్లలు పెట్టుకొని తిరిగినట్టు గటువంటి ఇవాళ నాయకత్వం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ చేస్తా ఉంది. మరి ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ జాతి కోసం తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు మన కేసీఆర్. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటాడు. ₹1 కూడా ఇవ్వడు అసెంబ్లీలో. నేను అడిగిన, ఏదా మంచినీళ్ళ పైసలని నీ చిత్తూరు జిల్లాకు పెట్టుకున్నావు, మా తెలంగాణకి ఇయ్యవా, మా తెలంగాణ సంగతి ఏంటని నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని బల్ల గుద్ది అసెంబ్లీలో అడిగితే ₹1 ఇయ్యని తెలంగాణకి ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అన్నాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని ఈయన పదవి ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్య అతిథిగా పిలుచుకుంటాడు కిషన్ రెడ్డి. అంటే మీరు ఏంది, ఏమైనా తెలంగాణ సోయి ఉన్నదా నీకు? తెలంగాణ ఇజ్జతుని ఏడబెట్టదలుచుకున్నారు మీరు? ₹1 ఇయ్య తెలంగాణ కానియ్యా అన్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కాళ్ళ దగ్గర తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని పెట్టే ప్రయత్నం ఇవాళ బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణను రాసి రంపాన పెట్టిండు. నా కరెంట్ ఇయ్యలే, నీళ్లు ఇయ్యలే, వ్యవసాయం దండగన్నా. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరనేమో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు మన తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కుదబెట్టాలని చూస్తున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ జాతి, తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ గౌరవం కేసీఆర్ అయితేనే నిలబెట్టగలుగుతాడు. ఇవాళ రాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిండు, తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో వెలుతురు నింపిండు మన కేసీఆర్. మరి అటువంటి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत को मणिपुर के हालात पर काबू पाने से ज्यादा अपनी शबी की फिक्र है। बैरिस्टर ओवैसी ने मणिपुर के हालात को लेकर फिर एक बार मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों की हालत से ज्यादा हुकूमत को अपनी शबी की फिक्र है। उन्हें उन खवातीन की फिक्र नहीं है जिनकी असमत दरी की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मणिपुर में तशद्दुद जारी है, ताहम जानबूझकर वहाँ के हालात पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इसके बाद रुकन पार्लियामान ने सवाल किया है कि ये कैसे हो सकता है कि हजारों खवातीन पर जुल्म हो रहा है, असलाह लूटा जा रहा है, इससे उनकी शबी मुतासिर नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ मुतनाज़ा वीडियो ही उनकी शबी खराब कर रहा है और वो उसके लिए परेशान है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि तमाम जराइम की तहकीकात सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को बरतरफ करना चाहिए। The issue is that the Modi government is more concerned about their image. This violence against Kuki women killings has been continuing from last 3 months now, more than 70 days. So they are more concerned about their image, and it is shameful that they are not concerned about the rape of those two women and many other women. So for everything for them is a conspiracy. But what about the violence which is continuing in Manipur? They are not able to control it.
and deliberately they are not able to control it. So a new angle is given of conspiracy. How can you say it's a conspiracy when so many women have been raped, thousands of arms have been looted, thousands of ammunition has been looted? It is your failure of your government. But because of that video, your image has been spoiled. You are worried about that only. And you're not showing that kind of anger towards what is happening in Manipur right now. So what do you want the Modi government? What do you? So what do you want Modi government to do? The Chief Minister hand over all investigation to CBI. The looting of arms should be given to NIA. Then only justice can be done. You are only giving one case of those two women who were unfortunately paraded naked and raped to CBI. If all the offences should be given to CBI, the Chief Minister should be removed, and the looting of arms, 6,000 arms have been looted, more than 60,000 rounds have been looted, that should be given to NIA. Then only some justice can be done and normalcy can be restored in Manipur. गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम आशुरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि माह मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है। रियासती गवर्नर ने यौम आशुरा के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में यौम आशुरा मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे अकीदे के हुसूल के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गवर्नर ने इंसानियत परस्ती का मुजाहरा करने वाले माह मुहर्रम के जज्बे की तकलीद करने की कोशिश करने का पैगाम दिया और कहा कि माह मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है। ये कुर्बानी अमन और इंसाफ के नजरियात ही हमें मुतासिर करते हैं। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के उपल में सैलाब से मुतासिरा इलाकों के दौरे के मौके पर दो कांग्रेस लीडर्स के हामियों के दरमियान झड़प हो गई। तफसीलात के मुताबिक उपल के कांग्रेस लीडर एम परमेश्वर रेड्डी के हामियों ने एक और कांग्रेसी लीडर आर लक्ष्मण रेड्डी की जानिब से लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया। ये पोस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे से पहले उपल के एशियन मल्टीप्लेक्स पर लगाए गए थे। बताया गया है कि परमेश्वर रेड्डी और लक्ष्मण रेड्डी दोनों आइंदा असेंबली इंतखाबात में उपल हल्के से मुकाबला करने और कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों लीडरों के हामियों को पुलिस ने रोक दिया और भीड़ को मुंतशिर कर दिया। दरियासना इस हंगामा आराई को रिकॉर्ड करने वाले सहाफियों पर भी हमला किए जाने का पता चला है। चंद नामा निगारों की जानिब से बतौर नाराजगी रेवंत रेड्डी के दौरे का बायकॉट किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लिमान मल्लिकार्जुन रेवंत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर पर जोर दिया है कि वो प्रगति भवन से बाहर आएं और रियासत में शदीद सैलाब से होने वाले नुकसान देखें। रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को मल्लिकार्जुन पार्लिमानी हल्के के उपल और एलबी नगर में सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात के इंतबाह देने के बावजूद सैलाब के असरात से निपटने के लिए तैयारी नहीं की गई। सहाफियों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बारिश से नुकसानात होने के बाद हुकूमत बीदार हुई है और खुद को सिर्फ मीडिया के बयानात जारी करने तक ही महदूद रखा है। मरकजी हुकूमत से रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि वो रियासत तेलंगाना के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करे और सैलाब के सबब
जान की बाजी हारने वाले खानदानों को 25 लाख रुपये मुआवजा दे। వాళ్ళ ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం చచ్చిపోయింది. ఈ రాష్ట్రం వరదల్లో ముఖ్యమంత్రి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి ఇద్దరు కొట్టుకుపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలుస్తలేరు. కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి కూడా ఆ 30 మందితో కలిపి ఈ ముగ్గురికి కూడా పిండ ప్రదానం చేయాల్సిందిగా సోమవారం రోజు రాష్ట్రం నలుమూలల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకే కాదు తెలంగాణ సమాజానికి నేను పిలుపిస్తున్నాను. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా, ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడి 1000 కోట్లు తక్షణమే ఈ రాష్ట్ర విపత్కర పరిస్థితులను నేషనల్ డిజాస్టర్ కింద ప్రకటించి हुकूमत तेलंगाना ने उस्मानिया जनरल अस्पताल की इमारत को मुनहदम करने का फैसला लिया है। हुकूमत 35 लाख मुरब्बा फीट पर नई इमारत तामीर करवाएगी। उस्मानिया जनरल अस्पताल की मौजूदा मखदूश इमारत को अस्पताल के लिए गैर मौसू बताते हुए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और अस्पताल की नई इमारत की तामीर के लिए मौजूदा ढांचे को मुनहदम करने का फैसला लिया है। उजरा महमूद अली, तलसाडी श्रीनिवास यादव, AIMIM सदर व MP हैदराबाद वेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, महकमा सेहत, बल्दी नज़्म नस्क, RNB और OGH के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद करते हुए उस्मानिया अस्पताल की मखदूश इमारत को मुनहदम करने का फैसला लिया गया है। याद रहे कि फिलहाल उस्मानिया अस्पताल में 1100 बिस्तर ही दस्तयाब हैं। पुरानी इमारत की खस्ता हाली की वजह से इमारत खाली कर दी गई है और बिस्तरों की तादाद में कमी आई है। रियासत झारखंड में मुहर्रम जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया। जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन वायर से टकराने के नतीजे में बर्क़ी शॉक लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया झारखंड के बोकारो जिले के पीटरवार ब्लॉक के खेटू गांव में पेश आया है। बताया गया है कि जुलूस के दौरान ताजिया बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके सबब 13 अफराद को बर्क़ी शॉक लग गया। वहां अफरा तफरी मच गई। जख्मियों को लोगों ने इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया। 13 में से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 झुलस गए हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। विजिलेंस टास्क फोर्स टीम ने मधुरा नगर में एक मकान पर छापा मारा और जुआ खेलने वाली 13 खवातीन को पकड़ लिया। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर खलील पाशा की क़यादत में विजिलेंस टास्क फोर्स टीम ने जुमे की रात को मधुरा नगर में ज्योति नामी खातून के घर पर छापा मारा, जो कि ताश के खेल मुनक़िद कर रही थी। टास्क फोर्स टीम ने वहां जुआ खेल रही 13 खवातीन को तहवील में लिया और उनके पास से 1,12,000 रुपये नकद रकम, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। बाद टास्क फोर्स टीम ने तमाम अफराद और जब्त शुदा अशिया को मधुरा नगर पुलिस के हवाले कर दिया। कागज नगर के सरकारी अस्पताल में टीबी अमले की जानिब से गफलत बरतने का मामला सामने आया है। टीबी अमले की गैर मौजूदगी में वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करता देखा गया। कागज नगर के मंडल मरकज के सरकारी अस्पताल में टीबी अमले की जानिब से गफलत बरतने का इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि हाल ही में अस्पताल का दौरा करने वाले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की हिदायत को टीबी अमले ने नजरअंदाज कर दिया है। गरीबों को टीबी इमदाद की फराहमी में डॉक्टर्स न सिर्फ लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि अस्पताल में भी
मौजूद नहीं है। ऐसे में मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए वार्ड बॉय की जानिब से उनका इलाज किया जा रहा है। मरीज के रिश्तेदारों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकारी अस्पताल की सूरत हाल बयान की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।